The universal, the purpose of the universal invocation is to quieten our mind for us to be able to listen, meditate, and learn. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feels themselves as one with thee know they are therefore one with every other. So today I have the pleasure and privilege to introduce the speaker, Sri Narsimbhai Thakaria ji. He's a postgraduate in economics. He has worked in the government and retired from the government services. He's held several teaching camps in Bhopal and in Varanasi. He's from the Sanatan Lodge. He's a vice president there, and he's also the vice president at the Gujarat Theosophical Federation. He's a life member. Today's topic is very interesting. Things to do for the development of a happy life. His very face reflects a very happy person. So no better person to give us advice on what are the things to do for a happy life. Welcome, Thakaria ji. Please start. Thank you. Thank you. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yeah. First of all, I thank the Indian section Varanasi Lodge for inviting me as a national lecturer in meeting 27th October 2024, Sunday at 6:00 p.m. I am privileged to be attending this meeting. During this time, each individual present here will receive a lot of valuable knowledge about few concerned things to do for development of happy life. I would like to repeat this. Few concerned things to do for development of happy life, which helps a lot of for living an ideal, stress-free and peaceful life. Again, I thank all of you for being a part of this beautiful event. I am sure you will leave this place with inspiration and divinity. Special thanks to Brother Mahapatra ji for necessary help and heartily wishes. My topic is few concerned things to do for development of happy life. सुखी जीवन के विकास के लिए थोड़ी अच्छी बातें अपनाना जरूरी है. हैप्पी लाइफ के लिए थोड़ी अच्छी बातें अपनाना जरूरी है. तो ये क्या है ये अच्छी बातें? तो स्टेप बाय स्टेप ये अच्छी बातें के बारे में हम आज की स्पीच में, आज के लेक्चर के में सुनेंगे. तो सबसे पहले है कि वैल्यू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण को आपको मूल्य देना पड़ेगा. ये पहली बाबत है. जब आप अपने आत्मनिरीक्षण को ये मूल्य देते हैं तब My power enable me to look after and use the treasure within me. मेरे में जो शक्तियां पड़ी है, मेरे में जो ऊर्जा है, मेरे में जो अंदर की अपार ऊर्जा है, उसका जब हम इंट्रोस्पेक्शन को मूल्य देते हैं तब वो ऊर्जा हम देख सकते हैं और उसी ऊर्जा का हम अपने लिए और दूसरों के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए I need to explore the treasure within me and try to discover one that I can work on today. The more I work with the gifts I have been given, the stronger they will become. जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते जाएंगे आत्मनिरीक्षण का, तो अंदर से इतना मजबूत होंगे कि अंदर का हमारा जो प्योरिफिकेशन है, हमारा जो सब्लिमेशन है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आत्मनिरीक्षण को हमको ये मूल्य देना जरूरी है. जैसे जैसे हमारा ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाता है,
तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन में हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का हम मूल्य को पहचान सकते हैं और उस ऊर्जा को हम अपने लिए माई पावर इनेबल मी टू लुक आफ्टर द यूज द ट्रेजर विद इन मी। मेरे में ये ऊर्जा पड़ी है और मैं उस ऊर्जा का अब उपयोग करूंगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बातों में ये पहली अच्छी बात है कि वैल्यू इंट्रोस्पेक्शन। आप आत्मनिरीक्षण को मूल्य दें, अंदर सोचो, अंदर गहराई से सोचो कि मेरे में क्या है, मेरे में कौन सी अपार ऊर्जा पड़ी है जिस ऊर्जा को मैं उपयोग कर सकूं। और दूसरी जो अच्छी बात है वो प्रेम को मूल्य दो, वैल्यू ऑफ लव। ये प्रेम को जो आप मूल्य देते हैं तब सेल्फ लव ब्रिंग्स जॉय टू वंस लाइफ। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। सेल्फ लव, अपने को बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो, बहुत प्रेम। सेल्फ लव ब्रिंग्स जॉय टू वंस लाइफ। अपनी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। अपने को प्रेम करो, अपने को प्रेम करो। ये मास्टर की है। हम अपने को प्रेम नहीं करते, इसलिए जो प्रेम का असली मूल्य है वो असली मूल्य हमको पहचानने में आता नहीं है। तो सेल्फ लव ब्रिंग्स जॉय टू वन सेल्फ। People look for love through relationship, yet this love is colored with expectation. When these expectations are not fulfilled, there is a tendency to get upset. Before we can love others, we need to learn to love ourselves. अपने को खुद प्रेम करो, खूब प्रेम करो अपने को। जैसे जैसे अपने को ये प्रेम करने की आपकी ये जो साधना बढ़ती जाएगी, तब आपके अंदर का जो प्रेम है वो प्रेम आपको ये जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है ना उसके साथ आपका एकत्व होता जाएगा, एकत्व हो जाएगा। और जो परमात्मा की जो शक्ति है उसी शक्ति, वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही परमात्मा की कृपा आप में वर्क करती आप देख सकेंगे कि ओहो मेरे में कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन बदलाव कैसे हुआ? आपने प्रेम को मूल्य दिया, आपने प्रेम को मूल्य दिया। तो जैसे जैसे आप ये जो अच्छी बातें हैं उसमें ये जो आप प्रेम को आपको जैसे मूल्य देते हैं, वैल्यू ऑफ लव, तब व्हेन आई लव माई सेल्फ I am able to appreciate all the unique qualities and virtues that are part of me. मेरे में जो कीमती जो चीजें पड़ी है उसका मूल्य मुझे समझ में आता है जब मैं अपने को प्रेम करता हूँ, अपने को प्रेम करता। I feel happy and secure within myself. अब मुझे किसी बाहर से कोई सुख शोधने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर से हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद, शांति शांति का प्रवाह इतना प्रकट होता है, इतना प्रकट होता है कि दुनिया का सबसे हैप्पी मैन में अपने को फील करता हूँ। वी नीड टू लर्न टू लव ourselves. When I love myself, I am able to appreciate all the unique qualities of the virtues and are part of me. I feel happy and secure within myself, and I am able to project that love out forward other people. The more love I express, the more love I receive in return, filling my life with joy. जैसे जैसे मैं प्रेम दूंगा, जब मैं अपने में पहले प्रेम क्रिएट करूंगा, वो प्रेम में दूसरों को दूंगा, तो वही प्रेम मुझे रिटर्न मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। प्रेम 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 प्रेम, ये वैल्यू, लव को वैल्यू देना, ये सबसे जो ये अच्छी बातों में से एक बात है। वैल्यू, प्रेम को मूल्य दो, प्रेम को मूल्य दो, तो पूरा का पूरा फैमिली बदल जाएगा। फैमिली में थोड़ी जो कमी है वो क्या है? प्रेम की कमी होती है। एक दूसरे को जो प्रेम देने की प्रक्रिया बढ़ती जाए तो पूरा फैमिली
प्रेममय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, प्रेम। तो वैल्यू, प्रेम को मूल्य दो, प्रेम को मूल्य दो। और दूसरा जो मूल्य आपको देना है, वैल्यू ऑफ गिविंग। परमात्मा ने हमको ये पृथ्वी पर कुछ देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं भेजा है। आप ऑब्जर्व करो, प्रकृति में जहां भी आप देखेंगे, वृक्ष फल देता है, ये जमीन में से अनाज मिलता है, गाय दूध देती है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र शीतलता देती है, हवा में हमको जैसे ये हवा मिलती है, कितनी देने की प्रक्रिया सतत 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 चलती है। वैल्यू ऑफ गिविंग, जब उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हम में से ये मूल्य प्रकट होता है कि मुझे भी कुछ देना है, कुछ देना है, कुछ देना है। और जैसे जैसे आप ये देने की प्रक्रिया में प्रैक्टिकली अपना जीवन बनाते जाओगे, तब जैसे जैसे आप देते जाओगे उससे बढ़िया आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। गिव एंड टेक, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का ये नियम है कि आप देंगे, बाद में आपको मिलेगा। ये किसी को हम सोचते हैं ये लखपति हो गया, ये करोड़पति हो गया, ये अबजपति हो गया। क्यों हो गया ये अबजपति, करोड़पति, लखपति? कुछ दिया है, कुछ दिया है। कुछ देते ही नहीं तो आप कुछ मिलेगा क्या? हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, धन देते हैं तो धन मिलता है, फ्रेंडशिप देते हैं तो फ्रेंडशिप मिलती है। जो आप देते हैं वो ही आपको रिटर्न मिलता है। तो प्रेम को आपको मूल्य देना बहुत ही जरूरी है। और दान, वैल्यू ऑफ गिविंग, कुछ न कुछ दिया करो, दिया करो, दिया करो। जैसे जैसे आप देते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये शास्त्रों में भी कभी कभी सेंटेंस आता है कि ये जो आप देते हैं उससे अनेक गुना आपको मिलता है। लेकिन ये प्रक्रिया अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने में अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। मैं देता हूं क्या नहीं देता हूं? वैल्यू ऑफ गिविंग, मैं दूंगा तभी मुझे, ये परमात्मा की कृपा था कि प्रकृति की कृपा था कि संतों की कृपा था कि वडिलों की कृपा था कि कुछ न कुछ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। लेकिन कब? जब मेरे में वैल्यू ऑफ गिविंग, ये देने का मूल्य हमारा में प्रकट हो जाए तो अपना पूरा जीवन बदल जाता है। अरे दो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। लेने की मत इच्छा करो, तुम लेने की मत। लेने वाला भिखारी रहता है, सच हो। लेने वाला कभी ये पैसादार बनता ही नहीं। दिया करो, दिया करो, दिया करो, दिया करो, दिया करो। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपके जनरेशन को भी वो जितना उसको पाना था वो पाने में वो समर्थ हो जाएंगे। तो ये जो देने का है, वैल्यू ऑफ गिविंग, तो हम कहाँ कहाँ मूल्य देना चाहिए, वो सब जो अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें जीवन में प्रैक्टिकल में जैसे जैसे अपने जीवन में से उसी बात का जो प्रैक्टिकल होता है, तब हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि अपने जीवन में हैप्पीनेस आ जाता है, अपनी लाइफ हैप्पी लाइफ होते हैं। वैल्यू ऑफ गिविंग, दिया करो, दिया करो। तीसरी अच्छी बात है फुलफिलिंग प्रोमिसेस। किसी को भी आप कुछ वचन दो कि ये दूंगा, ये दूंगा, तो उस वचन का पालन करो, पालन। वचन में से मत बदलो आप, बस ये अच्छी बात है। फुलफिलिंग प्रोमिसेस, ये हमें बहुत दुख होता है। कोई अपने वचन दिए और वचन का वो पालन नहीं करता तो बहुत परेशानी होती है, अपने अंदर से थोड़ी पीड़ा होती है। तो जो ये अच्छी बातें हैं उसमें
प्रेम का मूल्य, देने का मूल्य और फुलफिलनेस ऑफ वैल्यू ऑफ फुलफिलमेंट प्रोमिसेस। वचन को फुलफिल करने में कहें आप बिल्कुल अच्छी बात है, उसका ख्याल रखना। और इससे भी आगे जिसको हमें मूल्य देना है, कुछ अच्छी बातें, उसमें वैल्यू ऑफ पॉजिटिविटी। हमारा जीवन हकारात्मक होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम में से नेगेटिविटी चली जाती है, नकारात्मकता चली जाती है, और पॉजिटिविटी का जो प्राधान्य हमारे जीवन में आता है, तब ये पॉजिटिविटी समाज में हमारा जो स्थान होता है, उस स्थान को ऊंचाई देती है, ऊंचाई देती है, ऊंचाई। ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मूल्यवान आदमी। क्यों? तो उसमें पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। ये नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी हमें दुख देती है, पीड़ा देती है, अंदर की प्रशंसा को ले जाती है। तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन को मूल्य देना, प्रेम को मूल्य देना, दान को मूल्य देना, दिया करो, दिया करो, दिया करो, कुछ खुटता नहीं। वैल्यू ऑफ पॉजिटिविटी, खूब हकारात्मकता को मूल्य। जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी हमारे में आती है, तब ये जो कुदरत का लॉ है, ये प्रकृति में कहाँ भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। प्रकाश ऐसा कभी नहीं सोचेगा मैं यहाँ प्रकाश दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। चंद्र कभी ऐसा सोचता नहीं कि मैं यहाँ शीतलता दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। हवा कभी ऐसी सोचती नहीं है कि मैं यहाँ हवा दूंगी, यहाँ नहीं। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। ये पृथ्वी पर जितने इंसान है वो परमात्मा का सर्जन है, परमात्मा के साथ। और थियोसॉफी का ब्रदरहुड है, वो अपना सिद्धांत है, इंटरनेशनल ब्रदर, भाई भाई भाई। ये पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी में ही हम अपने को, किसी के साथ का जो व्यवहार है, वो व्यवहार परमात्मा को रुचे, ऐसा व्यवहार हम कर सकते हैं जब हमारे में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। मूल्य दो, इसको मूल्य दो। वैल्यू ऑफ ट्रूथ, सत्य को मूल्य देना बहुत जरूरी है, सत्य को मूल्य देना बहुत जरूरी। अपने जीवन में जितना दुख आता है, पीड़ा आती है, अशांति आती है, अंदर की जितनी अच्छी न लगी ऐसी घटना ये घटती है, उसका कारण ट्रुथ का अभाव है, ट्रुथ का, वैल्यू ऑफ ट्रुथ। जब हम असत्य के रास्ते पे चलते हैं, तब बस दुख की प्रक्रिया चली आती है। दुख, 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 अशांति, 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 पीड़ा, पीड़ा, पीड़ा। इतना बढ़िया सत्संग है, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। एक ही बात का अपने प्रैक्टिकल जीवन में अमलीकरण में आ जाए तो हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ बन जाए, हैप्पी लाइफ। प्रेम को मूल्य दो, दान को मूल्य दो, वैल्यू ऑफ फुलफिलनेस ऑफ प्रोमिसेस। किसी को भी वचन दिया है उसको पूरा कर।
कोई आपके पास आए और बोले कि मुझे इतना पैसे की इतनी चीज की जरूरत है ना, आप बोलो क्या मैं दूंगा, तो प्रोमिस को आप पूरा करो। परमात्मा बहुत देगा आपको जब आप ये फुलफिलिंग प्रोमिस का जो आप पालन करते हैं, तो आप पर परमात्मा की कृपा और करती है। आप सत्य को मूल्य देते हैं तब भी आप पर परमात्मा की कृपा होती है। मूल्य को, ट्रूथ को वैल्यू दो। हम वैल्यू किसको देते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सुबह से जब हमने ये प्रवृत्ति की जो प्रक्रिया में जुटे जाते हैं, तब हमको ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हम वैल्यू किसको देते हैं। प्रेम को मूल्य देते हैं, दान को मूल्य देते हैं, फुलफिलिंग प्रोमिसेस को मूल्य देते हैं, पॉजिटिविटी को मूल्य देते हैं, सत्य को मूल्य देते हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व। जो इसको हम मूल्य नहीं देंगे तो हैप्पीनेस अपने लाइफ में आ ही नहीं सकता। लाइफ में हैप्पीनेस लाना है तो प्रेम को मूल्य दो, कुछ न कुछ दिया करो, दान दिया करो, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करो, सकारात्मकता भाव लाओ। किसी को आप मिले तो ऐसा लगे कि ये सच्चा थियोसॉफिस्ट है। सिंपली थियोसॉफिस्ट हमेशा बोलते हैं कि मैं थियोसॉफिस्ट हूँ, लेकिन थियोसॉफिस्ट में ये जो अच्छी बातें हैं ना, ये अच्छी बातें होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अपने में प्रेम होना चाहिए, अपने में देने की भावना होनी चाहिए, अपने में फुलफिलिंग प्रोमिसेस की एक क्षमता होनी चाहिए, अपने में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अपने वैल्यू ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, सत्य और सत्य। इसको मूल्य दो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन। आप जो भी निर्णय करते हो उसी निर्णय को पूरा करने में उसको मूल्य देना पड़ता। आज सुबह मैंने सोचा कि एक गरीब एरिया है, वहां मुझे खाना देने जाने की मेरी भावना है। ऐसा अंदर एक प्रोमिस निकलता है, उसको मूल्य दो। उसको जब आप मूल्य नहीं देते तो जो डिटर्मिनेशन है, जो निर्णय है, वो निर्णय कमजोरी में बदल जाता है। जो भी आप निर्णय करो उसको मूल्य दो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे निर्णय को हम मूल्य नहीं देते, इसलिए वो निर्णय हम प्रैक्टिकल में अमलीकरण नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी बात। प्रेम को मूल्य दो, देने को मूल्य दो, प्रोमिसेस निभाने में मूल्य दो, पॉजिटिविटी को मूल्य दो, सत्य को मूल्य दो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन। अब जो भी निर्णय करो उसको मूल्य दो। एक दफा निर्णय लिया कि मैं ये करूंगा करूंगा करूंगा, उसको मूल्य नहीं देते तो वो निर्णय अमलीकरण में नहीं, अमलीकरण आप नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन है नहीं, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है लाइफ में, जो हमें हैप्पी लाइफ बनानी हो तो।
ये few concern things to do for development of happy life. कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी बात. Value of positivity, value of truth, value of determination. निर्णय को बहुत महत्व है, बहुत महत्व, बहुत. वैल्यू ऑफ एंथुसियाज्म, अपने में उत्साह होना बहुत जरूरी है. कभी निरुत्साह मत बनो, कभी निरुत्साह मत. निरुत्साही मनुष्य जीवन में कुछ ही प्राप्त ही नहीं कर सकता. उत्साह उत्साह उत्साह, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, एनर्जी एनर्जी, ये मैं करूंगा करूंगा जरूर करूंगा. इतना जबरदस्त निर्णय अपने में आ जाए, determination to say I will do it ensures success. कितना मूल्य. जब आप ऐसे नक्की करते हैं कि I will do it, हो ही जाता है, हो ही जाता है. When something difficult comes our way, the first thought is often, it is difficult, but I will try to do it. But saying I will try brings doubt into the mind. When doubt corrupts in, we often overlook things that help us become successful. सफलता के लिए to say I will do it, determination बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. I will do it, I will do it. जीवन में सफलता देता है. और एंथुसियाज्म, उत्साह बहुत जरूरी है. जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है. To be enthusiastic is to be free. जैसे आप उत्साही बनते हैं ना, तब आप किसी पर आधारित नहीं होते. उत्साह आपको एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, आपको फ्री कर देते हैं. When everything is going well, it's easy to enthusiastic and interested in moving forward. But when even in little things goes wrong, we tend to lose the enthusiasm to anything. This makes us feel tied down, and then it becomes difficult or even impossible to put in enough effort to move forward. जब ये उत्साह कम हो जाता है, तो हमारा जो सफलता का जो रास्ता हो, वो सफलता का रास्ता में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. एंथुसियाज्म, उत्साह बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. उत्साह को कभी मत कम होने दो, कभी मत कम. A caged bird has the ability to fly, but is unable to spread its wings and soar. I need to remind myself that being enthusiastic in all situations is like being a free bird. जो पिंजरे में पक्षी होता है वो उड़ नहीं सकता है. हम फ्री बर्ड है. हमारा उत्साह होता है ना, वो हमको एक फ्री उड़ान के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. अरे तेरे में सब ऊर्जा है. एक बार उड़ के देख, उड़ के ऊपर उठ के देख, ऊंचाई पर जाके देख, अच्छा करके देख, इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगा. ये इंथुसियाज्म को वैल्यू देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. इससे भी आगे एक बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीज है जिसे हमें मूल्य देना है, उसको वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी. मानवता को बहुत मूल्य देना, मानवता को बहुत.
ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। जब अपने में सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होता है तभी हमें ह्यूमिलिटी की वैल्यू समझ में आती है, मानवता क्या है। जब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट होता नहीं है तब हम ह्यूमिलिटी की वैल्यू नहीं समझ। ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। When I find myself getting affected by criticism, I need to check whether I am sure of what I am doing. I need to look within and learn to appreciate my own special qualities and think about how I can use them in my daily life. As my confidence grows, I will become humble. जैसे हमारे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब हमारे एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यस, मैं ये करूंगा, मैं इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए मैं अच्छा करूंगा, इससे भी अच्छा करूंगा, इसके लिए मैं मदद करूंगा, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ जो कुछ मेरे सामने आएगा उसकी मांग के मुझे मैं अवश्य दूं। ये ह्यूमिलिटी है। ये थियोसॉफिस्ट की जीवन में सबको अपेक्षा रहती है ह्यूमिलिटी की। जब हम बोलते हैं कि मैं थियोसॉफिस्ट हूं, तब आप में ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। As my confidence grows, I will become humble. जैसे जैसे हमारा में विश्वास बढ़ता जाता है, मेरे में नम्रता आती है। ये ईगो है ना, ईगो वाले व्यक्ति में ह्यूमिलिटी नहीं होती, लिख लो। जहां जहां भी हम ये ईगो वाले व्यक्ति का दर्शन हो जाए और उसके साथ बैठने का ऐसा समय जा जाए, तब हमारी दृष्टि में आ जाता है इसमें ह्यूमिलिटी नहीं है। संघ में हम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रामायण के एक चौपाई है, विधिवत सज्जन कुसंगति पर ही मणिफणि जिम गुण अनुगुण अनुसर ही। संजोग वसात किसी थियोसॉफिस्ट को कोई दुर्गुण वाला आदमी के साथ संग हो जाए तो कैसे व्यवहार करेगा? उसका दुर्गुण अपनाएगा? नहीं। जैसे दृष्टांत में कहा कि सांप के इस सिर पे जो मणि है, उसी मणि पे पॉइजन है लेकिन वो पॉइजन सांप को मार नहीं सकता। मणि पीने जीवन गुण अवगुण, जहां जहां से गुण लेना है गुण लेना और अवगुण को और दुर्गुण को दूर कर। ये हमारी दृष्टि में कुछ न कुछ ऐसी परिवर्तन आनी चाहिए जैसे हम पीस का अनुभव करें। किसी भी घटना में हमको जो स्थिर रहना है, उसी स्थिरता का हमारी साधना में हमने जो प्रैक्टिकल क्या है उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। एक दृष्टांत है, एक सत्संग में एक संत प्रवचन कर रहे थे, बड़ा हॉल था, बहुत ही बड़ा हॉल, बहुत ही ऑडियंस खींचोखींच भरा हुआ था। प्रवचन चल रहा था, संत बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था। उसी टाइम पे अर्थक्वेक, धरतीकंप आया और सब श्रोता वर्ग
दौड़ के हॉल से बाहर निकल गए। संत वहां बैठे रहे। जब वो धरतीकंप शांत हुआ और श्रोता वर्ग सब हॉल में आए, तो श्रोता में से किसी ने संत को पूछा, ये अर्थक्वेक के टाइम, ये धरतीकंप के टाइम आप दौड़ के हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आए? संत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, मैं भी दौड़ा था, आप दौड़ के बाहर गए, मैं दौड़ के मेरे अंदर गया। मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, मेरी चेतना, मेरी अमृत तत्व, मेरा सब कुछ मेरे अंदर जो उसके पास में चला गया। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ऐसी अवस्था बननी चाहिए, ऐसी अवस्था। तब हमारे में से ये ह्यूमिलिटी, मानवता है ना, मानवता का प्रागट्य। थियोसॉफिस्ट एज ए मैन सबको अच्छा लगना चाहिए, ये मानव है। देखो, हम कितने लोग को मिलते हैं, लेकिन एज ए मैन अच्छे नहीं लगते, एज ए मैन अच्छे नहीं। क्यों? उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, मानवता नहीं है। ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना का स्वाभिमान हो जाए, ये मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये पृथ्वी पर परमात्मा ने मुझे कुछ अद्भुत कार्य के लिए भेजा है, मानव सेवा के लिए भेजा है, दूसरों की भलाई के लिए भेजा है, पुण्य कर्म के लिए भेजा, सत्कर्म के लिए भेजा है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भेजा है। ये ह्यूमिलिटी, ये मानवता जब हमारे में प्रकट होती है, तब परमात्मा के साथ हमारा एकत्व। ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट। I need to look within and learn to appreciate my own special qualities, and then about how I use them in my daily life. As my confidence grows and I will become humble. मैं नम्र हो जाता हूँ। ये नम्रता थियोसॉफी में बहुत प्रायोरिटी के उपदेश में आता है। नम्र बन, नम्र, ह्यूमिलिटी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें में से कुछ भी बातें जब हम प्रैक्टिकल में ले जाते हैं, तब हमारा जीवन सुखी बनता है, हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ बने। और अपना कुछ जो लक्ष्य है न, वो लक्ष्य पे आप उसको वैल्यू दो, कि मुझे मनुष्य देह मिला है, तो परमात्मा ने इसलिए मनुष्य देह मुझे, इसलिए, वरना ये चक्कर चलता ही रहेगा। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म। वो यहाँ हमें अंदर से कुछ न कुछ फोकस करना जरूरी है, कि मुझे मानव देह क्यों मिला, ये मानव देह का लक्ष्य क्या है। ये दोनों चीजें बहुत ही दुखमय है। जन्म भी पीड़ादायक है और मृत्यु भी पीड़ादायक। और जो थियोसॉफी का बोध न होवे, तो
बीच में जीना भी पीड़ादायक। तो क्या करना है, क्या करना है? कब हैप्पी लाइफ मिलेगी, कब? इतनी बढ़िया अच्छी अच्छी बातें हैं। आपको सुखी जीवन बनाना है, आपको हैप्पी लाइफ बनाना है, तो ये अच्छी बात को गहराई से अपनी समझण में, हृदय में समा। मैं प्रेम को मूल्य दूंगा, मैं पॉजिटिविटी को मूल्य दूंगा, मैं ट्रूथ को मूल्य दूंगा, सत्य को मूल्य दूंगा, सत्य को। मैं अपने निर्णय को मूल्य दूंगा, अपने उत्साह को मूल्य दूंगा, और मैं मानवता को मूल्य, मानवता को बहुत मूल्य देना चाहिए। परमात्मा ने ये मनुष्य देह इसलिए दिया है कि परमात्मा खुद नहीं आएगा ये पृथ्वी पर, लेकिन तुम्हारे में जो परमात्मा का अंश आत्म स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, उसको पहचान के दूसरों के साथ जो तुम्हारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होवे, उसी का नाम मनुष्य देह प्राप्ति का यथार्थ आपने समझा है, ऐसा आपको फील हो। जरूरत क्या है ऐसा पशु जैसा जीवन जीने से? अपने में से मानवता प्रकट होनी चाहिए, अपने में से प्रेम प्रकट ना होना चाहिए, अपने में से ब्रदरहुड प्रकट होना चाहिए, अपने में से ये व्यापक परमात्मा क्या 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 कैसे चलाता है, सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी समझ में, अपनी गहराई वाली समझ में, जब अंदर अपने अंदर की अपनी जो इग्नोरेंस है, अज्ञान हटता है और ज्ञान का प्रागट्य होता है, तब अंदर का जीवन प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, करुणामय हो जाता है, दयामय हो जाता है। ओ करुणा करुणा करुणा, दया दया, प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए तो पृथ्वी पर ये मनुष्य देह दिया है, किसी की ईर्षा के लिए नहीं। और इगोइस्ट आदमी का संग मत करो कभी, उससे दूर हो जाओ। ये इगोइस्टिक है, वो क्या भला करेगा? इगोइस्टिक का मतलब ही ये है कि उसमें थियोसॉफी का एक भी गुण है ही नहीं। अलग हो जाओ उससे, जिसमें प्रेम दिखे, जिसमें दया दिखे, जिसमें करुणा दिखे, जिसमें परमात्मा का प्रकाश दिखे, जिसमें ज्ञान दिखे, बस उसका संग करो, उसका संग। निर्णय को मूल्य दो, उत्साह को मूल्य दो, ह्यूमिलिटी मानवता का मूल्य दो, और अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। लक्ष्य निश्चित करना बहुत जरूरी। क्या लक्ष्य है अपना ये? कभी अपने अंदर से प्रश्न उठता है, जैसे रमन महर्षि जैसे संत कहता है, तो कहते हैं कभी पूछो को हम, मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम, ये सृष्टि क्या है, को अस्य कर्ता विद्यते, उसका सर्जनहार कौन? ये प्रश्न कभी उठता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने अच्छी बातें सुनी नहीं। जब हम अच्छी बातों को वैल्यू देते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, प्रेम को मूल्य देते हैं, दूसरों की भलाई को मूल्य देते हैं, सत्य को मूल्य देते हैं, तब हम में से जो ये सुखी जीवन की जो मास्टर की है, हैप्पी लाइफ, वो हमें प्राप्त हो जाती है।
मेरा जैसा हैप्पी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं आज देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शिवो हूँ, शिवो हूँ, शिवो। चेतना, 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 प्रेम, 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 परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। ये लक्ष्य होना चाहिए। कौन हूं मैं? कौन? ये मैं नाशवंत देह हूं, या अंदर की जो मेरी आत्मा है अविनाशी, वो मेरा स्वरूप है? ये बोध होना चाहिए हमें, ये बोध होना। कभी कभी जैसे जैसे ऐसा हमारा में प्योरिफिकेशन आ जाता है, तब हमारी क्वालिटी बदल जाती है। जैसे एक दृष्टांत है ना, कहीं में सुना था या पढ़ा था, भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 6 साल से तपश्चर्या कर रहे थे। सुना है, कहीं पढ़ा है। एक दिन सुजाता नाम की स्त्री ने उसको खीर खिलाई, और ऐसा मैंने पढ़ा है कि वो खीर खाते ही उसको बुद्धत्व प्राप्त हो। कितनी क्षमता होगी वो स्त्री शरीर में, कितनी क्षमता होगी उस स्त्री शरीर। ये लक्ष्य है हमारा, प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब घटित हो जाए। अब क्या जन्म लेके करना है? मरना ही तो है, जन्म लेके मरना ही है, और बीच में जीने का कोई थियोसॉफी के सिवा कोई ऐसा बोध ही नहीं मिलता जिससे हमारे जीवन में शांति मिले, प्रेम मिले, उदारता मिले, संघर्ष का अभाव हो जाए। ऐसा प्रेममय कोई जीवन जीने का रास्ता न हो तो ये क्या मनुष्य देह, पशु जैसा मनुष्य देह जीने की क्या जरूरत? मरने के लिए ही है। अब जो पति 2500 डॉक्टरों के हाजिरी में चले, गरीब भी जन्म लेके मरता है, और दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति भी जन्म लेके मरता ही है। लेकिन बीच में जो जीना है वो सीख लेने की कला सिखाती है। थियोसॉफी से पाथ ऑफ परफेक्शन, ये पूर्णता का पथ है, पूर्णता का। ये पूर्णता हमारे में, ये अच्छी अच्छी बातें का जब हम स्वीकार करते हो, और जो प्रैक्टिकल में हमारे में ये जो अच्छी बातें आती है, तब पाथ ऑफ परफेक्शन हमारे में देखता है कि यस, थियोसॉफी इज द पाथ ऑफ परफेक्शन। फोकस बहुत जरूरी, निर्णय करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे अच्छी बातों का अमलीकरण होता जाता है, हम प्रेम को मूल्य देते हैं, दान को मूल्य देते हैं, पॉजिटिविटी को मूल्य देते हैं, ट्रुथ को मूल्य देते हैं, उत्साह को मूल्य देते हैं, मानवता का मूल्य देते हैं, तब हम में सिंप्लिसिटी आ जाती है। बहुत सरलता आ जाती है। थियोसॉफी के सब जैसे जैसे महान मास्टर को देख, कितना सरल, कितना सरल। ये सरलता ऐसे नहीं आती। ये सब अच्छी बातें जब अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपनी साधना में, अपनी उपासना में, अपनी आराधना में जब पूरा परिश्रम करके उसको उतारते हैं, तब हमारे में सिंप्लिसिटी आ जाती, बिल्कुल सादा। हम
चला जाता है। अहम की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में हम किसी का हित नहीं कर सकते। इगोइस्ट आदमी का जब कभी भी आप कहीं भी मिलो तो ये सिंपलिसिटी जिसमें दिखे उसके पास बैठो। इगोइस्ट के पास मत बैठो तुम, क्योंकि वो दुर्गुण से भरा हुआ होता है इगोइस्ट। सिंपलिसिटी ये शास्त्रों का सद्गुण है। सादाई बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सिंपलिसिटी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे प्रवचन में हम जैसे गहराई में हम चिंतन में चले जाते हैं, तब हमारे अंदर की पूरी जो अवस्था है उसमें हम शांति की अनुभूति कर सकते। शांति, शांति। सिंपलिसिटी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। उसको मूल्य देना भी बहुत जरूरी। जैसे जैसे ये जो अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें ही साधना में हमको उसको मूल्य देना जरूरी। ये अच्छी बात को हम जो मूल्य नहीं देते, तब ये प्रेम की जगह द्वेष आ जाता है, दान की जगह लोभ आ जाता है, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आ जाती है, ट्रुथ की जगह असत्य आ जाता है। कैसा कैसा कैसा। या तो ये अच्छी बातें स्वीकार करो, अन्यथा बुरी बातें तुम्हारे में प्रवेश हो जाए। ये दो ही रास्ते हैं। अच्छा बनना ही तुम्हारे हाथ में, बुरा बनना ही तुम्हारे हाथ। अरे मत बनो बुरा, मत बनो, कि परमात्मा ने मूल्यवान मनुष्य देह दिया है। बार बार मनुष्य देह नहीं मिलता। जैसे जैसे आप ये मनुष्य देह का मूल्य देंगे, मनुष्य देह को अच्छी बात को मूल्य देके मनुष्य देह को मूल्य दो। मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, मेरे में कोई ऐसे दुर्गुण तो प्रवेश नहीं करने चाहिए, मेरे में अहंकार तो प्रवेश नहीं होता है, मेरे में सुबह से जब मैं उठता हूं तब किसी के अहित का विचार आ जाए तो समझ लेना तुम अच्छी बात को स्वीकार नहीं किया है। तुम सिंपलिसिटी, सादाई को बहुत महत्व, बहुत। और लास्ट में वैल्यू ऑफ यूजिंग टाइम, समय का बहुत सदुपयोग करो। और हमारे थियोसॉफी में तो ऐसा नियम ही है कि तुम्हारे प्रवचन का 1 आवर है तो 1 कलाक में तुम्हारा प्रवचन पूरा हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो प्रवचन का समय है, ये समय पूरा हुआ होता मुझे मालूम पड़ता है। इसलिए आज जो अच्छी बातें मैंने बताई है उसको थोड़ा रिपीट करके मेरा प्रवचन में समाप्त करूंगा। आज की अच्छी बात में मैंने बताया है कि आपको आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, प्रेम को मूल्य देना जरूरी है, दान को मूल्य देना जरूरी है, प्रॉमिस को फुलफिल करना उसको मूल्य देना जरूरी है, पॉजिटिविटी को मूल्य देना जरूरी है, सत्य को मूल्य देना जरूरी है, डिटर्मिनेशन को मूल्य देना जरूरी है, एंथुसियाज्म उत्साह को मूल्य देना जरूरी है, ह्यूमिलिटी को मूल्य देना जरूरी है, अपने लक्ष्य को मूल्य देना जरूरी है, सिंप्लिसिटी सादाई को मूल्य देना जरूरी है, और समय को मूल्य देना बहुत ही जरूरी है।
तो इसी के साथ मैं मेरा ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम और खूब आशीर्वाद देना, जैसे मेरे थियोसॉफी के मेरे गुण, मेरी क्षमता, मैं कुछ थियोसॉफी का अच्छा वर्क कर सकूं, ऐसी ऊर्जा मिले, ऐसी मेरी ओर से प्रार्थना करो। ऐसा आप सबके चरणों में प्रणाम करके मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम ओम ओम। थैंक यू सो मच सर। इतना सारा विजडम था, इतना सुंदर था प्रेजेंटेशन। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप में से कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, मोस्ट वेलकम। सब यस डुबाल जी, प्लीज unmute. Dubal ji, you have raised your hand. Do you listen? Yeah. You can आवाज speak. आ रही है? जी जी बोलिए। Yeah, it was a nice talk today, very inspiring, and really I appreciate the qualities because here in Africa, Tanzania, we have started 25 years back. We have the object that to form a nucleus of universal brotherhood, and for that, helping the poor people, needy people. So we started the orphan house here 25 years back with collaboration of the Buddhist monk. When we started, we didn't have the funds, but for a few months, it was, I said, it can run for about 6 months, but thereafter, we have to find other options if we don't get the donors. But when the masters have the good wish and our intentions are good, you get the blessings. And it is now 25 years, we uninterrupted. This is running with 100 kids are there, and new ones are coming. Some few of them have already graduated and they have settled in the life. 10 of them have married and they are self-reliant. So when you have intention to give, you see the blessings of the masters is always there, and we are just the trustees, and we do such activities. This is what I have to add. It's really inspiring talk today, and it gives us the happiness. Thank you. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुन के, बहुत आनंद हुआ बस। Thank you Dubal ji, that's a very inspiring sharing from you. Anybody else? We have a few more minutes. एक मिनट से Vimalji, we can close because it is going to touch 1 hour. So we can close with it. I think there is no one. Okay, once again, I thank everybody and especially thank Nathan ji for his wonderful lecture today. Lots of things to learn. So let's all join in the closing prayer. Asatoma Satgama, Tamasoma Jyotirgama, Mrityorma Amritam Gama. Om Shanti. Shanti. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye.